Hello and Jai Hind to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi, and you all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. सभी साथियों को जय हिंद है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज, दैट इज लेक्चर के क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने डाले हुए और क्वेश्चन सीरीज का ये 6th लेक्चर रहेगा। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। होप आई एम ऑडिबल, होप आई एम आल्सो विजिबल टू यू। Okay, so without wasting our single minute, we are going to discuss very important task, very important lecture here. It is electricity. Electricity के कुछ numericals करने वाले हैं, इसके साथ साथ कुछ हम MCQs करेंगे that are asked in CBSE. Okay, so be with us till the last and we will consider all the things, all the lectures. Okay. So be with us, give me 2 seconds only and I will show you the PDF of the content. Give me 2 seconds only. बेल आइकन फ्यूचर अपडेट को मिलना है। Okay, so here is our reference of NCERT and it is basically related with electricity. The today's topic is, दोस्तों यहाँ समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। Electricity is one of the most important chapter as per the NCERT. Okay, so यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अधिक बनने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से करीबन 50% जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक्स एक ऐसा यहाँ पर सिनेरियो हो जाता है। ये चैप्टर दोनों एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके चैप्टर्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल स्पेशली भर भर के पूछे जाते हैं इन 10th एंड अगर हम बात करें 12th सेक्शन की, तो वहां पर मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफी कुछ पूछा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफी कुछ पूछा जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी, कंपल्सिटी, ओके, वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडेज लेक्चर। क्वेश्चंस रहेंगे अपने पास कुछ और ये करीबन 40 से 45 मिनट का लेक्चर रहेगा। सो बी विद अस विदाउट वेस्टिंग, वी विल these are the multiple choice questions which are of NCERT and they are asked in the previous exams. So one of the question is saying that question number 1 it is, and it is asking about there are some arrangement 1, ठीक है, arrangement 2 and arrangement 3 are given, are shown in the picture. Okay, there is some question of that a cell and resistors and a key and a 1 meter, okay, are arranged in shown figure diagram we have. Okay, so we are going to know the current recorded in ammeter will be. The ammeter is a device which is used to detect the current, to record the current, to detect the current. We are going to discuss that ammeter is very important and it is connected in series from the circuit. If we have electric circuit, so we are always connecting the ammeter in the series combination. So it is asking about the ammeter reading about the current. So some of the options are there. One of the option is saying that the current would be maximum in first, it is maximum in second, it is maximum in third, and fourth one is saying that the same in all the cases. When we have R resistor and A ammeter and K is on, in all these cases you can see that the K, the switch, okay, it is absence of switch. In third we have not a switch, ऊपर है, यहाँ पर दिए गए हैं. So in all these circuits current would be shown in that. So सभी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू को आप देखोगे सो सेम है। सभी कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं उनमें जो वैल्यूज हैं दोस्तों वो सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। अगर आप बात करें एमीटर की, अगर आप बात करें
रजिस्टर की या फिर स्विच की, यानी कि के से जिसको डिनोट किया गया है, सभी सभी जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं इन दिस क्वेश्चन, दीज आर सेम। सो अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, यहाँ समझिएगा, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V is equals to IR, and now it is asking about I, so I is equals to V divided by R। so यहाँ पर वोल्टेज जो है, जो बैटरी जुड़ी हुई हैं इनसे मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, these are the same voltage, and the resistance R is same in the three categories, so we can say that I would also be same। so we can say, depending on these cases, we can say the question number D, it is the correct option according to the scenario of the question. Getting it now? Now the next question would be, just a second. Okay, so we are taking the next question here. Question number 2. In the following circuit, figure 12.2, produced heat produced in the resistors or combination of resistors connected to 12 volt battery would be, it is asking about H. H is equals to I square RT. We have already learned about it. It's Joule's law of heating, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने इसको पढ़ा था, तो इसी का यूज करेंगे एंड वी विल rectify all these questions. Okay, suppose that there are three main what circuits are given. Okay, so depending on the cases, we have 12 volt battery, V is equals to 12. Okay, 12 volt, and now the resistance is for R1 it is 2 ohm. Okay, and the second case, second scenario, it is 12 ohm 12 volt battery, same potential, and if we are saying about resistance, the resistance would be 4 ohm. We are connected the series, है ना, 2 and 2 ohms are connected in same wire, so it is in series, and series में हम combination जोड़ देते हैं, and यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 volt total resistance. Now we have the two resistors are parallel, so parallelly अगर हम बात करेंगे, so it would be 1 ohm resistance value of third diagram, the resistance value would be 1 ohm and 12 volt battery it is. Potential of the three, all the three diagrams are same, but the resistance value is differing. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट में 2 ओम की आई है ना, यहाँ पर सेकंड में 4 ओम का लिए वैल्यू आया है, and the magnitude of the resistance third would be 1 ohm. So depending on these criteria, you have to tell about the heat precipitated in first. It is saying that same in all cases. I is equals to I square, H is equals to, H is equals to I square RT, I and RT, it is not given here, so we are taking it a constant, मान सकते हैं कि ये constant रहे होंगे. Now we can say, अच्छा I निकालनी होगी, पहले आप क्या करोगे, और R और V को यूज करके हम I निकालेंगे, देन आप उसके लिए हीट को ले हीट के लिए देखेंगे. सो यहाँ पे आप देखिए कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, रेजिस्टेंस है हमारा इन द सेकेंड यूनिट. ओके, इट इन द सेकेंड इट इज सो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस जब मैक्सिमम रहेगा, so what could be scenario? In A option it is saying that same in all the cases. In B option it is saying that case 1 the minimum heat would be required. Okay, in the third one it is saying that maximum in case second, जो heat जो होगी वो case second के लिए maximum रहेगी, and D is saying that maximum in case third. So one by one we are discussing this. आंसर में आगे देखेंगे तो इन द फिगर 1 इट इज द R वैल्यू वुड बी 2 ओम. ओके, जो हमने आपको बताया था वही चीजें यहाँ दिखी हैं कि नेट रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे इन द सेकंड सिनेरियो, द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सो 2 + 2 = 4 ओम, एंड द रेजिस्टेंस इन द third one is 1 ohm. 1/2 it is, and 1/2 it is these are the ohm, these are the the
cases of parallel combination, so we are getting it 2 by 2 and it is 1 ohm. Clear? So it is the scenario is थर्ड ओम में, जो थर्ड जो फिगर है वहां पे आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम रहेगा. सो डिपेंडिंग ऑन दिस वी आर गोइंग टू हैव द फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ. एंड जूल्स लॉ में आप देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि v स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, h इज इक्वल टू यहाँ पे आप निकाल सकते हो I स्क्वायर आर टी. क्लियर? एंड I क्या है? I को अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर या v डिवाइडेड बाई आर करेंगे तो ये चीजें आप समझ सकते हो. अब बात करेंगे अगर कि सिंस द नेट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम इन थर्ड, यहाँ पे देखो जो रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम है. मिनिमम माने थर्ड में मिनिमम है. ठीक है? आर की वैल्यू थर्ड में क्या है? आर की वैल्यू थर्ड में मिनिमम है. तो यहाँ पे आप देखो आर क्या है? आर डिवाइड में है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला लिया है जिसको आप कह सकते हो, देखो ध्यान से, लेट मी इरेज दिस, कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी. ओके, सो यहां से अगर आप देखोगे आर जो है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है h के. ठीक है? सो यहाँ पे अगर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माने जिसकी वैल्यू कम है, मींस थर्ड के केस में वैल्यू कम है, 1 ओम है. सो वहां पे 1 ओम के वैल्यू के कंडीशन में h सबसे ज्यादा होगा. द हीट वुड बी मैक्सिमम इन द केस थर्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी मैक्सिमम केस थर्ड. इट इज डी ऑप्शन विच इज वेरी करेक्ट. क्लियर है दोस्तों? समझ आ रही चीजें? अगर हम बात करें सेकंड की तो सेकंड में तो 4 ओम था, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस जो है 4 ओम था, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इन दोनों केसेस की तो आप देखोगे इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट कम हो जाएगी. ठीक है? हीट यहाँ पर कम हो जाएगी. क्लियर है बात? समझ रहे हैं दोस्तों? समझ पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की, ठीक है, लेकिन टी नहीं दिया गया यहाँ पे तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ना ही हमें आई दिया गया है. सो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा h इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर. क्लियर है? v और r दिया गया दोस्तों, इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज, इट इज सेइंग दैट the electrical resistivity of a given metallic wire, that means resistivity rho is the resistivity and it is resistivity की जो यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी और ये डिपेंड करती है किस पर? इट्स लेंथ पर, इट्स थिकनेस पर, इट्स शेप और नेचर ऑफ मटेरियल. इन सभी बातों को हमने पढ़ा था. द रिलेशन बिटवीन रजिस्टर and what resistance R are related to R is related with rho. R is very related with rho. ठीक है? इन सभी बातों को हमने बढ़िया से पढ़ा था. एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड दीजिए. एक फॉर्मूला मैंने आपको कहीं पहले वाले लेक्चर्स में बताया है जब हमने थ्योरी के लिए इसको लिया है. तो इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वन फॉर्मूला. R is equals to, that is resistance of a wire is equals to rho L divided by A. So R is depending on the 3, L length and A area, that is cross sectional area of the wire, and rho is the resistivity. So resistivity यहाँ पूछा गया है तो आप इन तीनों को कंसिडर कर सकते हैं. Its length, ये डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर, उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा बिकॉज एरिया इज द पार्ट ऑफ थिकनेस, एंड इट्स शेप पर भी डिपेंड करेगा बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एरिया. हाउ व्हाट आर द शेप कुड बी द सर्कुलर शेप पाई आर स्क्वायर. हम जब लेते हैं रेजिस्टिविटी तो वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन इज दिस कि हम सर्कुलर लेंगे उसको, पाई आर स्क्वायर लेते हैं, शेप वहां पे मैटर करेगा. एंड अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन वायर डिपेंड्स अपॉन मोस्टली इट इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ. ठीक है? मोस्टली इट इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ. ये बात समझ रहे हो?
मोस्टली जो है उसके लेंथ पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ठीक है, यहाँ आप बात करेंगे नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पर डिपेंड करती है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। समझ रहे हैं, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल मतलब रजिस्टिव। सुनो, एक बात मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो है, ठीक है, कि जो जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, आर के लिए अगर देखेंगे, देखो दोनों बातों को क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मैं बात करूं कि आर आर डिपेंडिंग ऑन व्हाट, रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड एरिया। Resistance of any wire is inversely proportional to area. When we are increasing the area, the resistivity would be decreased. When we are increasing the length, resistance would be increased because they are inversely directly proportional. So वहां पे आप क्या करोगे, एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ऐसे ही लेंथ को जब बढ़ा देंगे या लेंथ को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब में बढ़ जाएगा। बट अगर हम बात करें रो की, तो रो के केस में ये उल्टा हो जाता है। आप रो को एक बात टेबल में एनसीईआरटी में आप खोलिएगा इस चीज को, तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको सीधा सीधा कि रो जो है किसी दूसरे वेक्टर पे डिपेंड नहीं करती, बट वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो आपको मैंने कई सारी वैल्यूज भी बताई हैं। ठीक है, अगर मैं कई सारी चीजें लूं, जैसे सिल्वर की वायर लूं, तो सिल्वर की वायर में जो रजिस्टिविटी की वैल्यू है वो सबसे नेग्लिजिबल है, सबसे कम है, मिनिमल है। और अगर हम बात करें किसी किसी ऐसी चीज की जिसमें ऑर्डर ऑफ रजिस्टिविटी सबसे मैक्सिमम हो, 10 टू द पावर 12 के आसपास, 10 टू द पावर 14 के आसपास, तो दीज आर द इंसुलेटर्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो वो चीजें क्या है, वो नेचर पर डिपेंड करती है। वो किस पर डिपेंड करती हैं, the only factor depending about the resistivity is nature. So it is very important, the nature of material is directly related with rho, that is means resistivity of any wire. क्लियर है दोस्तों, समझ रहे हैं? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है और इसको अच्छे से समझना होगा, तभी आप आगे कर पाएंगे, बातों को समझ पाएंगे। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई की वैल्यू आपको 1 एम्पियर दिया गया है। नाउ वी हैव सेकंड सिनेरियो, वी हैव सम अदर सिनेरियो कि आपको बताना है इज दिस करंट ऑफ 1 एम्पियर ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बल्ब जला रहे हैं और उसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 16 सेकेंड, मतलब 16 जो सेकेंड है वो टी की वैल्यू आपको गिवन है। 16 सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन अब दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, देखो पहला ऑप्शन आपको है 1020, 1016, 1018 एंड 1023। सो नंबर ऑफ द वैल्यूज आर गिवन। करंट आपको 1 एम्पियर दिया है, टी की वैल्यू आपको 16 सेकंड दिया है। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि Q इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, अब Q क्या है, Q तो दिया नहीं गया है, बट यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हैं, जो N दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। E की वैल्यू आपको पता है, E इज द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यू कूलम। ओके, 1.6 इट इज माइनस में है। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम दिया है 15 सेकंड, यहाँ पे 15 होना चाहिए, 16 इन्होंने 15 लिख दिया है, इट्स टाइपिंग एरर, 16 होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे आप समझिए, 16 होना चाहिए, 16 इंटू 1। अगर हम बात करें एन की, तो एन क्या हो जाता है, एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इज इक्वल टू हो जाएगा आई मीन्स करंट इंटू 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। सो वहां पे आप देखोगे 1 इंटू 15 दैट मीन 16। सो 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सो इट वुड बी 1020 इलेक्ट्रॉन्स। 1020 इलेक्ट्रॉन 15 सेकंड में किसी भी बॉडी में जिसमें
एक इलेक्ट्रॉन का एक एम्पियर का करंट है उनमें जा सकता है। एक और सेकंड सिनेरियो आपका बनता है, एक और क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें पूछा जाता है कि अगर एक कूलाम का चार्ज किसी बॉडी में फ्लो होकर निकलता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। तो वहां पर भी क्वेश्चन बनता है जो एक नंबर में आपसे पूछा जाता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, देखो ध्यान से समझो, आइडेंटिफाई करना है द सर्किट गिवन इन फिगर in which electrical components have been properly connected। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको ये कहना है, बताना है कि जिस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको सारे कंपोनेंट अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टेड हैं तो वो बता देना है। देखो समझो, सर्किट में यहाँ पर ये गलत है क्योंकि वोल्टमीटर को कभी हम सीरीज में नहीं लगाते, एमीटर को लगा सकते हैं। तो एमीटर के केस में सही है, बट वोल्टमीटर भी कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड में वोल्टमीटर कनेक्टेड है पैरेलली। ठीक है, गुड। अगर हम बात करें एमीटर की, एमीटर में यहाँ पर देखो माइनस टू प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें -2+ अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो करंट की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो करंट की मैग्नीट्यूड के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक, बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी गलत है क्योंकि हम कभी भी एमीटर को पैरेलली कनेक्ट नहीं करते। इसको अगर देखेंगे तो इट इज करेक्ट वन, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें द सेकेंड, द सर्किट गिवन इन सेकेंड, यहाँ पे देखो द सर्किट गिवन इन सेकेंड, ये वाला सर्किट आपका एकदम कंप्लीट है, करेक्ट है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊं कि रेजिस्टेंस में हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को। ठीक है, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और की भी ओपन है और यहाँ पर बैटरी भी बढ़िया तरीके से लगी हुई है। अगर हम बात करें करंट की तो प्लस से होकर माइनस की तरफ जाता है फोन, करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है -2+। तो यहाँ पे वो भी चीजें सही हैं, तो आप इसी चीज को देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको पढ़ाया है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, उम्दा तरीके से देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट इज, देखो समझो क्वेश्चन नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नेक्स्ट इट इज कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी यूज यूजिंग 5 रजिस्टर ऑफ 1 पॉइंट वी कैन से 1 डिवाइडेड बाई 5 ओम। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओम कैसे निकलेगा। सो मैक्सिमम करंट वुड बी, सॉरी मैक्सिमम रेजिस्टेंस वुड बी व्हेन वी आर गेटिंग द ऑल द रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सभी जितने भी रेजिस्टेंस हैं, चाहे जितने रेजिस्टेंस हों, अगर उनको हमने पढ़ा है इस चीज को, उनको अगर हम पैरेलली कनेक्ट ना करके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे सकता है। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। देखो 1/5 1/5 1/5 करके इनको हम कितनी बार जोड़ेंगे, इनको हम 5 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 × 5। ठीक है, समझ रहे हो बातों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 5, इट इज 1 ओम। तो द मैक्सिमम कुड बी 1 ओम। यहाँ पे वही चीजें इन्होंने दिखाया, बट मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको कर दिया है। चीजें क्लियर हो रही हैं, सभी बातें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट। ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, ऊपर वाले में मैक्सिमम पूछा था। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, माफी चाहेंगे, मैंने गलत पढ़ दिया दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ पे होगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम था पहले वाले में, अब यहाँ पूछा गया आपसे सबसे कम रेजिस्टेंस बताइए जब हम 5 ही रेजिस्टेंस 1/1/5 ओम के लेते हैं। 1/5 ओम का एक रजिस्टर है और आपको सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस दिखाना है। सो वी आर कनेक्टिंग इट विद इन सीरीज। ठीक है, विद इन नॉट इन सीरीज बट इन पैरेलल। सो यहाँ पे आप देखो, जब हम मैक्सिमम लेंगे तो सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, और जब हम मिनिमम लेंगे तो कैसा जोड़ेंगे, वहां पे रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। किस में बताओ, किस में जोड़ेंगे,
तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस निकल के आता है। अगर हम बात करें 1/5 की, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1/5 इसको हम 1 से फिर डिवाइड कर देंगे, तभी तो 1/R आएगा। तो ये हो जाएगा 5 ओम। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, 1/R की वैल्यू हो जाएगी, 1/R की वैल्यू आपको बताऊं 5 हो जाएगी। ऐसे ही 5 बार हम इसको जोड़ेंगे, दैट मीन्स 5 × 5 कर देंगे तो 25 आएगा दोस्तों, 5/5 है ना, 5 × 5 दैट इज मीन्स 25, और ये इसकी वैल्यू आएगी 1/R की, तो ये हो जाएगी 1/25 ओम। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। 1/5 जो है, 1/25 जो है, इट इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें 1/25 आएगा इसका आंसर, 1/25 आएगा इसका आंसर। आप इसके आंसर को देख भी सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसको सॉल्व भी किया है। ये बातें क्लियर कर रहे हैं सर, हम सब समझो। अब यहाँ पे दिखा है द प्रॉपर रेजिस्टेंस, द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल जोड़े हैं हमने सीरीज में, तो यहाँ पर कितने बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें, प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो माइनस माइनस नहीं हो सकता, गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है। ओनली द फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर अल्टरनेट हम टर्मिनल्स ले रहे हैं, तो मैक्सिमम सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी जो सेल्स लगेंगी वो वहां पे आपको कैसे लगेंगी बताओ, वहां पर सारी की सारी अल्टरनेट सेल से जुड़ी होंगी। जैसे मान लीजिए जब भी हम सेल को कनेक्टेड करते हैं, 2 and more than 2 cells are connected, so these are called battery combination. so बैटरी में हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से सीरीज में जोड़ते हैं, एंड इट इज वेरी करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ बैटरी, सॉरी सेल्स, एंड दे आर कनेक्टिंग टू फॉर्म अ बैटरी। क्लियर है, समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फर्स्ट, इट इज मेंशनिंग हियर दैट। ओके, समझ आ रही चीजों को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, यहाँ समझो, कह रहा है इसमें से कौन सा नंबर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले W/I लिखा है, इंटू टी कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज को करेगा, W/T, so W/T इट इज क्या हो जाएगा देखो, और यहाँ पे आप देखोगे समझोगे कि वर्क डन इनटू चार्ज, W इंटू क्यू, V इंटू क्यू, यही तो है वोल्टेज। नहीं समझे? वोल्टेज बराबर होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था वोल्टेज होता है वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज। ठीक है, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके लिए हम निकालने वाले हैं वोल्टेज, वोल्टेज जो हो जाएगा W इंटू क्यू हो जाएगा। सो ये गलत है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बातों को समझ पा रहे हो? सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। और अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान समझो, सेकंड ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अब ए के लिए फिर से देखो, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा था IT। ठीक है, IT का मतलब करंट इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिया है वो मतलब वर्क डन। सो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू हम जानते हैं IT होता है। सो IT होता है, इसको हम Q भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आपको Q आएगा। अब ये चीज पता होनी चाहिए कि करंट को हम करंट का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई T, दैट मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इट इज कॉल्ड करंट, और उसी फॉर्मूले से बन के आता है दोस्तों Q इज इक्वल टू IT। सो Q इज इक्वल टू IT इज इन डिनोमिनेटर हियर, and it can be written in Q form. We can also replace it with Q, and Q W है ऊपर, Q है नीचे। So it is very correct formula for voltage। बातें समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा दोस्तों, और नहीं लगा सकते तो गलत बात। और यहाँ पर अगर आप देखो W इंटू टी, सो इट इज वेरी इनकरेक्ट। तो ये चीजें सारी सब गलत हैं, केवल ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा,
जो इट इज वेरी करेक्ट, देखो ध्यान से समझो, ए ऑप्शन इज वेरी करेक्ट ऑप्शन, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, W इज इक्वल टू आई, ये चीज छोड़ दो, कोई बात छोड़ो, इसको हटा देंगे अब, ठीक, कोई भी करेक्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A है एंड लेंथ L है, दोनों चीजें दी गई हैं। कह रहा है रेजिस्टेंस R है, और अगर हम दोनों को देखें, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, इसकी लेंथ इस बार 2L है, दूसरा तार लिए हैं, एंड रेजिस्टेंस R है, और सेम मटेरियल से बने हुए, और हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, बात समझ रहे हो। इसमें आपको बताना है क्या बताना है इसमें, एक सेकंड देने दो, दिखने दो मुझे, कि a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R, another wire of resistance 2L and resistance R, the same material as area of cross section। अच्छा, एरिया बताना है, एरिया बताने के लिए क्या करेंगे, एरिया बताने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो रो का फॉर्मूला होता है R इंटू कैपिटल A डिवाइडेड बाई L, ये चीज चलेगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए ये चीज चलेगी, फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए ये चीज चलेगी। नाउ वी हैव सम अदर, देखिएगा दूसरे लेंथ के लिए सेकंड केस में देखोगे, रो इज इक्वल टू R इंटू A, इसका एरिया अलग है, ठीक है, लेंथ कितनी हो गई, डबल हो गई लेंथ, 2L हो गई। सो इफ वी आर इक्वेटिंग, या हम इक्वेटिंग करें या बराबर करें, तो रो रो इज इक्वल टू रो डैश, इसको हम रो डैश माने ले रहे हैं। सो इन दोनों को बराबर करेंगे तो आर सेम है, आर सेम है तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, याद रखिएगा। एरिया डिफरेंट है, ए डैश है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, एल एल से घट जाएगा, तो आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू 2A। यहाँ पे आप देखो ये चीज 2A यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ये चीज, ये सिनेरियो बनेगा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट जहां पर अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, लेंथ लेंथ खत्म हो जाएगी, 2L, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पर जब हम ये चीज बनेगी, देखो मैं बता रहा हूँ कि L A डिवाइडेड बाई L एंड A डैश डिवाइडेड बाई 2L, ठीक है, आर आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाएगी। अगर हम L2L जो है एरिया के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पर LA के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, सो यहाँ पर जो है यहाँ पर L L कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, L L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा आपके पास, देखो, तो यहाँ पर 2A और A बचेगा, क्लियर है, ये 2A यहाँ से बन जाएगा, A यहाँ से बन जाएगा, L L वुड बी कैंसिल आउट, सो A बराबर 2A, ये रेशियो निकलेगा किसका, मतलब 1:2 निकलेगा आपका रेशियो एरिया का, 1:2 एरिया का निकलेगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर जो है, पीछे जाएंगे दोस्तों और समझने का प्रयास करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। कह रहा है A/2, सो द क्वेश्चन सेज दैट कि आपके पास जो एरिया है ना वो 2A के बराबर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही चीजें, क्लियर हो गया, सभी बातों को समझ पाए हो के, है ना। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क एंड यू विल बी विद मी द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम साथ।